अगर ये सवाल पूछा जाए लोगों से, व्हाई डिड यू बिकम अ रियल एस्टेट एजेंट, अगर जिसको कुछ नहीं आता वो रियल एस्टेट एजेंट बन जाता, मेरे हिसाब से बहुत हॉरिबल है. I think the major reason why a lot of people become real estate agents is because they get greedy with the size of transaction. 4 करोड़ की ट्रांजैक्शन है, 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन है, I will be able to make 2%, 3%, 4%. उनको लगता है easy money है. So how can this business scale? The problem is nobody is ready to pay money for understanding the need. Everybody wants to pay money for ready-made. Ready-made inquiry तो आ नहीं सकती है, क्योंकि लोगों की problems clear है, solution clear नहीं है. सोशल मीडिया पे रोज मैसेजेस आ रहे हैं, इफ यू आर अ रियल्टर एंड यू आर नॉट यूजिंग चैट जीपीटी देन यू आर लूजिंग मनी. So it's true. Let's be straight about it. अच्छा, People are going to lose jobs. चैट जीपीटी पे लीड जनरेशन भी हो रही होगी. वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ रियल मैटर पॉडकास्ट, जहां हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं टू द रियल एस्टेट हीरोज एंड एक्सपर्ट्स और एजुकेट करते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में. हमारा मिशन है टू प्रूव टू यू माय बिलीफ दैट रियल एस्टेट हमेशा से सही था, सही है और हमेशा सही रहेगा. हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर निमित शाह, जो कि एक एक्सपर्ट हैं इन मेकिंग डिजिटल मार्केटिंग सिंपलर एंड इफेक्टिव. He is a certified Facebook marketing partner and a certified Google expert. So get ready to learn about real estate and digital marketing secrets. Hi निमित जी, वेलकम टू माय पॉडकास्ट. आज ना मेरा प्लेजर है कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए एंड यू हैव फ्लोन स्पेशली फ्रॉम मुंबई and come to our Gurgaon studio. It's a pleasure for me, sir. आज ना कॉन्वर्जेशन मैं आपसे सीखना चाहता हूँ रिगार्डिंग द सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ कैन अ स्मॉल बिजनेस लर्न फ्रॉम यू फॉर देयर मार्केटिंग. तो वो आज की कॉन्वर्जेशन मेरे को पूरी उसके लिए रखनी है एंड आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू एंड थैंक यू अगेन फॉर कमिंग. I'm really happy, for being here. Actually, I would like to also share the fact that I especially flew because of the absolute resilience that you had of the last couple of months where you kept sending me invitation. हाँ जी. And मेरा प्लान नहीं बन रहा था, बट आपके लिए मैं बनाया. तभी मैंने बोला सर, इट्स अ प्लेजर फॉर मी. Absolutely. एंड शुरू एक बारी मेरे को आपसे समझना है कि आपका मोटिवेशन या आपका इंटरेस्ट कैसे जागा टुवर्ड्स द डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ डिड दैट जर्नी स्टार्ट. This question takes me to a very old part of my life. I was, I think, 19 and अच्छा. I started my first business when I was 19. उस टाइम पे internet used to be a very new thing. And I wanted to get into the food business. Okay. तो उस टाइम पे food on digital, मतलब आज भी अगर कोई बोल दे कि वो डिजिटल फर्स्ट फूड बिजनेस बिल्ड कर रहा है तो वो नई बात हो जाती है. तो इमेजिन करो कि आज से ऑलमोस्ट 18-19 ईयर्स बैक हाउ वुड इट बी, राइट? So all the way then I started using the internet. We used to generate more than 30 to 40 inquiries a day. Oh wow. For people who would order our food. अच्छा. Back in 2000, I think 7-8 when we started this business, I used to have 4 cloud kitchens. Oh, अच्छा. And we used to, I used to be, working very hard to understand how does the algorithm on the Google search and all of this work. And अगर आपने Google पे national wealth type कर दिया, तो first thing you will see is our ad, actually which was not an ad, it was an organic post, which used to say your health is national wealth. So I used to spend a lot of time understanding what people search. अच्छा. We used to do food service for working professionals in Mumbai. That was my first business. It used to be called as Green Veggies. उस टाइम तो ना जोमेटो होता था ना स्विगी होता था, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस टाइम तो. I mean, it was, so होता ना, sometimes you're in a business which is far ahead of time. Yeah. Maybe probably one of those challenges that I typically faced. We used to work with dabbawalas and all that, so different time, different story. But my interest towards digital started because I wanted to start getting people to reach out to us. Newspaper was obviously a very difficult medium for me to access as a newcomer. 19 साल का लड़का जिसके बैंक अकाउंट में 7,000 रुपये बैलेंस पड़ी हुई है,
बाप पॉकेट मनी देगा नहीं बिजनेस करने के लिए। अगर तुम बोलोगे कि बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, बोले पॉकेट मनी का पैसा नहीं है, तुम बिजनेस की बात कहाँ कर रहे हो। तो आई फिगर्ड आउट, वो बोलते हैं ना, लिमिटेशन ऑफ योर resources becomes the primary reason of innovation. Yeah. So I started innovating, finding out what else can I do, and that's how I started using the internet. Yeah. तो 2009 से शुरू हुआ है डिजिटल मार्केटिंग का जर्नी मेरा। उस टाइम तो आई थिंक कोई डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज भी नहीं होते थे उस टाइम तो। फेसबुक भी आई रिमेम्बर बहुत अर्ली स्टेजेस पे था, शायद इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ था। आई थिंक फेसबुक पिक्ड अप इन इंडिया आई थिंक सम 2013-14 के आसपास। या आई एग्री। या तो उस टाइम तो सोशल मीडिया का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं होता था। करेक्ट। तो इट वाज ऑल योर नीड, उस टाइम एक ज़रूरत थी आपको। एब्सोल्युटली। तो कर करके खुद ही सीखा है आपने सारा कुछ। इट्स so one thing which is the mantra of my life is the best way to learn anything is you do learn it on the job. So I wanted to learn computers. मेरे सारे फ्रेंड्स टिपिकली कंप्यूटर या इंग्लिश सीखने के लिए दे वुड गो टू अ क्लास, आई वुड गो टू अ कॉल सेंटर। अच्छा। तो इन माई सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज आई वेंट एंड इंटरव्यूड फॉर 2 कॉल सेंटर्स। एक में मैंने रियल एज बताई बिकॉज दे वर ओके विद इट, एक में मैंने फेक एज बताई बिकॉज दे वांटेड इट टू बी मिनिमम 21। But I got through both the jobs. Then eventually I picked up one. They taught me English. They taught me US English. They taught me UK English. So कैसे अलग अलग pronunciation होते हैं. And then I wanted to learn computers. So then I joined another call center called Dell. Okay. तो वहाँ पे all the way back in 2007 they taught me everything like computer OS reinstall, time machine where you can take your computer back to a particular time. Very nice. एंड आई यूज्ड टू बेसिकली डू अ नाइट जॉब। तो मेरा 9 o'clock रात को शिफ्ट शुरू होता था, 6 o'clock खत्म होता था, एंड माई कॉल सेंटर यूज्ड टू ड्रॉप मी टू माई कॉलेज। तो उनकी बस जो है वो उनका ड्रॉप मेरे घर पे नहीं होता था, मेरे कॉलेज पे होता था। आपने लाइफ में सारे हैक्स निकाले पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं। I mean, I always believe the fact that I think the best way to learn anything is you jump into the mud, and you do it. Theory is probably the most slowest way to learn anything. And I think जिंदगी में मज़ा भी तब आता है जब कुछ कर पाते हो आप, and when you can see the impact of that in your day-to-day life. So I still remember 3rd year of my college, the first day of my exam, I got a call from Yamaha. In fact, that also brings me back to my memory of Gurgaon because Yamaha's office is in Gurgaon. And that was my first reason to visit Gurgaon for the first time in my life. अच्छा। So they wanted to do a rock event. And अपना तो जुगाड़ वाला लाइफ है, तो हमने बोला ठीक है, we'll help you with it. The entire exam I just did no studies. I was busy preparing for my meeting with Yamaha. And I still remember that call also. I like while talking to you, I can even see that video. So talking to those people, I was like, I'm just entering into a meeting. I'll call you back after a couple of hours. And I was actually entering my exam papers. So then I got to Gurgaon after that, and that year I stood 6th in my college. तो मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते थे तू सीक्रेट में पढ़ता है, and the reality is that I actually used to buy my books one day before my exam. So when I used to go to the book buying the book, I used to tell them that अगर ये बुक आज लेके जा रहा हूँ कल रिटर्न कर दूँ तो कितना पैसा वापस कर। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, अब आप किस मुकाम तक पहुँच चुके हैं? बिकॉज जैसे लिंक्डइन पे मैं देख रहा हूँ यूर रनिंग मल्टीपल कंपनीज एंड उन सब का कोर जो आपका है वो डिजिटल मार्केटिंग ही है। तो व्हाट आर यू डूइंग नाउ? So I'm founder of Growth Factory. Growth Factory is basically a marketing agency. There are 3 categories we work for. Real estate being the biggest one. Real estate, e-commerce, and education. Okay. So these are the 3 different domains that we service. The reason why we service only 3 domains is because we took one domain at a time. Okay. For almost 2.5-3 years of our business, we just did real estate. Acha. So we must have probably done work for more than 70 to 80 developers across 7 different cities. And our core business is to help real estate business owners, developers, generate leads. So that's our primary business. And yeah, I have a couple of other businesses as well. So real estate में lead generation is very different from any other industry. जैसे even हम एजुकेशन की बात करें या D2C की बात करें तो रियल एस्टेट की लीड बहुत डिफरेंट होती है। वो चैलेंज आप कैसे ओवरकम करते हो? मतलब रियल एस्टेट एजेंट्स आर विलिंग टू स्पेंड वॉट एवर इट टेक्स। मतलब अगर आप किसी भी एजेंट से पूछोगे ना कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो वो बोलेगा लीड लीड और लीड। तो
वो चैलेंज आप कैसे ओवरकम करते हो, और व्हाट इज योर सीक्रेट? We actually map the world from two different versions. ओके. One is the version that the developer gives us. हम्म. तो डेवलपर जो अपना एक ऑफिस वर्जन देता है, दैट व्हाट आई कॉल इट एज द एसी ऑफिस वर्जन. ओके. राइट. तो वो एक एसी ऑफिस में बैठ के मेरा ये प्रोजेक्ट है, मेरा ये ब्रोशर है, फिर वो एक क्रिएटिव एजेंसी से एक ब्रोशर बनवाता है. या मतलब ये टिपिकल एक एसी ऑफिस वर्जन है. बिल्कुल ठीक है. तो मोमेंट वी गेट दैट, we park that aside and then we take the on ground version, which I call it the sales office version. ठीक है. So then I put my team and then they get on to mystery calls. So we basically become the customer. We inquire the project. तो हम सब कुछ ट्रैक करते हैं कि कितने टाइम में कॉल बैक आया, ओके. कितने टाइम में इंक्वायरी को रिस्पॉन्ड किया उन्होंने, मैसेज आया कि सिर्फ टेलीफोनिक कॉल आया, ईमेल आया कि नहीं आया, व्हाट डिड दे टॉक, डिड दे ट्राई टू अंडरस्टैंड माय नीड्स और डिड दे डायरेक्टली पिच देयर प्रोजेक्ट. सीधा सेल पे आ गए. सीधा आगे कि सर आर यू इंटरेस्टेड इन 1 BHK 2 BHK. तो हम ये सारी चीज़ें समझते हैं. ओके. ऑल्सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड के बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट व्हाट आर दे एक्चुअली पिचिंग. सो ये पिच में और वो जो एसी ऑफिस वर्जन की पिच है उसमें क्या डिफरेंस है, राइट. एंड देन वी डू वन मोर वर्जन विच इज बेसिकली द ब्रोकर वर्जन. सो देन वी कॉल अप 5 different brokers from that geography and we ask them, can you suggest a project in this geography, in this locality, and we try to thoda dheere dheere nudge them towards this project and understand from them the feedback about this project, this developer, all of that. तो इससे हमारा एक version बनता है which is basically what is the growth factories, proprietary version of the understanding about the project, and then we go to the marketing side. You find the truth के actual में चल क्या रहा है मार्केट के अंदर. Right. और जो आपने एसी ऑफिस वर्जन बोला, मेरे को भी हमेशा ऐसे लगता है कि जो डेवलपर का जो ब्रोशर आता है ना वो तो बहुत हाई लेवल होता है. बहुत मतलब इट इज 30,000 फीट अबव द ग्राउंड. करेक्ट. क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स लगी होती हैं. उसमें होता है माँ का प्यार. सो बेसिकली इट्स कॉल्ड एज द माँ बेटा रिलेशनशिप. अगर आप किसी भी माँ को पूछोगे ना तो उसके लिए उसका बेटा बेस्ट होता है. तो हर डेवलपर के लिए उसके प्रोजेक्ट से ऊपर और दुनिया में कोई प्रोजेक्ट होता ही नहीं है. कोई कंपटीशन है ही नहीं. कोई कंपटीशन ही नहीं है. तो उसका ब्रोशर, वी हैव वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंट प्रोजेक्ट, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, राइट. तो वो बेस्ट प्रोजेक्ट के हिसाब से वो बेस्ट वर्जन बनता है. बट वो बेस्ट वर्जन की रियलिटी क्या है ये तुम सेकंड और थर्ड वर्जन से निकाल सकते हो. हाँ, मे बी वो मार्केटिंग टीम उसको देख नहीं पाती, बट सेल्स टीम को नजर आता है कि एक्चुअल वर्जन क्या है. करेक्ट, एब्सोल्युटली. बट वो ब्रोशर्स के अंदर अगर आप कभी ध्यान से देखो तो उसमें क्या होगा, सिर्फ सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स होंगी, बच्चे खेल रहे हैं, प्रोजेक्ट की डिटेल्स तो होती नहीं है. व्हाट आर दे बिल्डिंग, दे विल ओनली पुट प्रिटी पिक्चर्स and that's it. So the point you actually raised is a very critical one, and in fact this is exactly what we do in our lead generation campaigns. Okay. So we spend a lot of time understanding what the project actually offers instead of what the brochure is shouting about, is claiming. Correct. And when we are able to bring the right version in front of the customer, that's when we get the right inquiries. Okay. So while the world can keep shouting कि यार inquiries अच्छी नहीं आती है, I'm ready to pay any amount of money for the lead, the right direction for anybody to search would be I'm ready to pay any amount to understand the need. The problem is nobody is ready to pay money for understanding the need. Everybody wants to pay money for ready-made stuff. Ready-made inquiry तो आ नहीं सकती है क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम्स क्लियर है, सोल्यूशन क्लियर नहीं है. हाँ, और मेरा ऐसा भी मानना है, जैसे आपने बोला 3 वर्जन आप देखते हो, एक डेवलपर की मैनेजमेंट वर्जन हो गया, एक डेवलपर का सेल्स टीम वर्जन हो गया और एक एजेंट वर्जन हो गया. बट एक चौथा वर्जन भी है, क्लाइंट वर्जन. मतलब जिसने खरीदना है, जैसे आपने बोला, उसकी प्रॉब्लम तो कोई समझना ही नहीं चाहता. उसको तो सीधा बस ये बोला जाता है ये प्रोजेक्ट है खरीद लो, ये प्रोजेक्ट है खरीद लो, ये प्रोजेक्ट है खरीद लो. उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट मैच भी हो रही है या नहीं हो रही है, इस पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता. So I'll tell you a very interesting thing that happened. One of our we do a lot of training programs for real estate as well. Yeah. And in one of our session, in fact, this was one of our first physical session after COVID. Okay. That we did. The program that we run is called as Sell Without Selling. Okay. So it's primarily on the concept of helping real estate business, and it's a real estate focused program. Yeah. Where we tell them how to learn selling real estate properties without actually doing the sales. Okay. And this actually reminds me of a conversation there. तो हमारा एक exercise था on I think day 3 in the morning where I asked them,
आई वॉन्ट यू गाइज टू, सो डे 2 पे हमने असाइनमेंट दिया था कि आपके सारे इंक्वायरीज जो है वो लेके आओ, और किसने किस प्रॉपर्टी को हाँ बोला है या ना बोला है उसके रीजंस लेके आओ. एंड दैट मॉर्निंग आई स्टिल रिमेंबर वॉज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल मॉर्निंग ऑफ द एंटायर इवेंट. क्योंकि वो मॉर्निंग में मैं 1 आवर के बाद आई एक्चुअली लेफ्ट द माइक एंड आई लेफ्ट द रूम. आई सेड द ट्रेनिंग सेशन इज ओवर एंड आई टेल यू द रीजन व्हाई. एवरीबडी, एक तो 40% ऑफ द पीपल डिड नॉट इवन हैव अ document where they maintain the inquiries. बिल्कुल ठीक है. 60% of the people who maintain it, they maintain it either in an Excel sheet or they maintain it in a Google sheet. Google Drive. Right? Google Drive पे. उसमें से 10-15% लोग थे जिन्होंने रिमार्क्स लिखे हुए थे. तो मैंने उनसे पूछा कि चलो 10% लोग मिल गए जिससे मैं बात कर सकता हूँ. तो मैंने पूछा उससे कि व्हाट आर द रीजंस व्हाई पीपल आर नॉट. तो एक ने बोला सर उसका बजट नहीं है. दूसरे ने बोला उसका पोजेशन उसको जल्दी चाहिए. तीसरे ने बोला कुछ और. चौथे ने बोला. एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट ईदर द 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, प्राइस, लोकेशन. मैंने बोला आई हैव अ एडेड क्वेश्चन ऑन टॉप ऑफ व्हाट यू जस्ट सेड. सो वन गाय सेड सर व्हाट यू आर सेलिंग इज द 2 BHK फॉर 1.8 crores. ही इज लुकिंग फॉर 1.2 crores. मैं बोला ठीक है. डिड यू आस्क हिम व्हाई? सेड नो. आई सेड डू यू हैव एनी रिमार्क्स अबाउट why? Yeah. And that conversation triggered a very different argument. And I was shocked. Yeah. Nobody in the room ever asked this question. Yeah. Why do you want what you want? I agree. I can totally relate. So the point that you mentioned actually reminds me of that conversation कि अगर किसी को पूछो कि कस्टमर के बारे में तुम क्या जानते हो, Yeah. तो वो इसलिए नहीं जानता है बिकॉज उसको why पूछा ही नहीं जाता है. Yeah. Sir, why are you looking for a 3 BHK? Yeah. Is it your expanding family size? Is it the privacy? Is it the need for the kids? Yeah. What is exactly the reason why you want to go for a 3 BHK? Yeah. Or a 4 BHK or a 5 BHK? Yeah, I agree. तो किसी के भी CRM में why का कॉलम ही नहीं है. So जैसे मैं भी कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाता हूँ तो वहाँ हमेशा ये सिखाया जाता है कि जो खरीद रहा है उससे पूछो कि वो क्यों खरीद रहा है, और जिसने आपसे पहले कभी खरीदा उससे भी जाके पूछो कि उसने आपको क्यों चूज किया. करेक्ट. एंड देयर आर सो मेनी questions that you need to ask your old and new clients to understand their need better. But I think real estate अभी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है. अभी उतना है नहीं. अभी तो क्या होता है, आप सिर्फ अपना माल उनको बेच रहे हो ज़बरदस्ती. आप ये भी नहीं समझते कि वो अफोर्ड भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. अभी यहाँ दिल्ली NCR में तो क्या होता है, अगर किसी के पास 50 लाख हैं उनको बोला जाता है सर आप 5-5 लाख के 10 फ्लैट बुक करा लो. यहाँ पे तो इस तरह का भी कॉन्सेप्ट होता है कि उनको बोलते हैं सर आप ऐसे करो, आप 10 फ्लैट बुक करा लो, इन पे प्रीमियम आ जाएगा, 10 में से 9 हम बेच देंगे, 1 आप रख लेना. तो आप 50 लाख लगाओ, आपको 50 लाख के ऊपर 50 लाख मिल जाएंगे. यहाँ पे तो इस लेवल तक भी मिस सेलिंग हो जाती है. Wow, this is news to me actually. When I go to any other part of the country, I go to Mumbai, Bangalore, वहाँ पे ऐसा नहीं है, but North इसके लिए famous है. Very interesting. So I think to the point which you mentioned that how can somebody improve or figure out कैसे सही inquiries generate करें. Yeah. I think the starting point to that is asking the question why. I agree. If you start learning about why your customer wants to buy what he wants to buy and focus on his problem statement. Yeah. Rather than focusing on what product you want to sell, then in the near future, you might start walking in the direction of finding the right customers. Yeah. क्योंकि फिर वो input लेके, then you go back to your marketing and then you redo your marketing message to be able to communicate with people in their tone, in what is relevant for them. Another very big problem with real estate is the resources that any realtor has. Yeah. तो ब्रोशर आता है जैसे ही जैसे ही ब्रोशर आता है, बिफोर आई थिंक इवन द ब्रोशर गेट्स डाउनलोडेड, इट गेट्स फॉरवर्डेड टू 100 पीपल, 100 ग्रुप्स. नीचे नंबर चेंज कर दिया जाता है, फट 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 फॉरवर्ड. Yeah. So I think the typical challenge is nobody wants to invest the effort that is required to make this more relevant and personalized for the consumer that he's selling to. Yeah, I agree. They are more interested in कि मेरा काम कैसे कम हो जाए. अगर तुम सिर्फ अपना काम कम करने की कोशिश कर रहे हो
So you have to remember the fact that customer is not a fool, and he will probably only trust people who are interested in the process Yeah. and not just trying to cut corners or do things in a shortcut. Yeah. हाँ, sometimes desperecy में बहुत customers मतलब कर लेते हैं transaction, and that's when they make a very strong judgment Yeah. कि यार ये तो चोर है, या ये तो ऐसा है, या ये तो वैसा है, बट उसके पीछे का जो reasons है is the way you've dealt with him. Yeah. So I think if you can really work on that process, it just automatically simplifies a lot of things. बट जैसे हम शूट से पहले भी बात कर रहे थे, ये इंडस्ट्री शायद आज भी वैसे ही चल रही है जैसे आज से 30 साल पहले चल रही थी. ठीक है, एक एजेंट जो सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन भी है, वो भी आज सुबह उठ के वही काम करता है जो एक नया एजेंट करता है. सो मे बी इसीलिए एजेंट्स ने सोचा ही नहीं, वो जो चलता आ रहा है बस उसी को चलाते आ रहे हैं. दे डोंट थिंक. जैसे आप अभी एग्जांपल भी दे रहे थे, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन जीरोधा का भी आप कुछ एग्जांपल दे रहे थे. So one of the things we profoundly talk about in our training programs also is I ask a lot of my realtors who are a part of my program, how can you think differently? Yeah. Right? When I say that, what do I mean is business real estate का ही करना है, लेकिन क्या वैसे ही करना है जैसे 30 साल पहले चल रहा था? तो typically when I ask my participants who I interact with regularly कि what is the kind of brokerage you make, right? So they would say 2%, 3%, 4%, whatever. Yeah. Right? Now a lot of people enter into the real estate business with that feeling कि यार 3% of a 2 crore transaction is a handsome amount of money. Huge amount. Right? What they don't realize is the time it takes to realize that transaction. Yeah, agree. So if I enter real estate today and if I'm super successful in doing everything right, my first transaction will get established in a span of 6 to 8 months. बिल्कुल ऐसे ही होता है. राइट. तो मैं मार्केटिंग शुरू करूंगा, लीड जनरेट होगी, साइट विजिट होगा, विजिट होने के बाद उसमें से कुछ इंक्वायरीज कन्वर्ट होगी, वो इंक्वायरी कन्वर्ट होगी, वो चेक देगा, उसमें से कुछ कैंसिल होगा, कुछ रह जाएगा. इवेंचुअली द परसेंटेज ऑफ एटलीस्ट आई थिंक 20-30% जब तक पेमेंट नहीं मिलती है डेवलपर को, वो आपको ब्रोकरेज नहीं देगा. बिल्कुल ठीक है. तो उसके बाद आपकी ब्रोकरेज की इनवॉइस रेज होगी. फिर वो इनवॉइस 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपर. तो टिपिकली द टाइमलाइन बिटवीन you starting today to the first transaction of money coming to your bank as a realtor is a 6 to 8 months timeline. बिल्कुल ऐसे ही होता है. And it shocks me कि अगर एक business का transaction 6 to 8 months लगता है, तो how can this business scale? Yeah. इसीलिए And तो why is nobody thinking about how to differentiate the structure of work that can fasten the cycle so that you can scale it rampantly? मेरे को लगता है जैसे आपने बोला ना कि एक ट्रांजैक्शन पे इतने पैसे बन जाते हैं कि शायद लोग डिफरेंटली सोचते ही नहीं है. बट एक्चुअली बनते नहीं है ना. एक ट्रांजैक्शन के पीछे तुम बैठे रहते हो कि यार 4% मिलेगा, चलो अच्छा है. You're not making a pipeline. The problem is in real estate nobody wants to challenge the model. अगर वो 3% कमा रहा है तो मैं 3 नहीं, मैं जाके डेवलपर को पिच करूंगा, मैं 4% कमाऊंगा और मैं उसको बोलूंगा मैं तेरे को ये भी दूंगा, मैं वो भी दूंगा, मैं वो भी दूंगा. They don't realize the time a transaction takes eats away all the profitability. And दोनों का नुकसान है. Developer loses more money. The channel partner or the broker makes less money because he's making money over a period of 6-8 months. So actually it's not adding value to anyone. You reduce the time of transaction, reduce the size of transaction. Everybody is a win-win. जिस तरीके से आप सोच रहे हो ना, मेरे को लगता नहीं रियल एस्टेट में कोई भी इस तरीके से सोचता है. सबको लगता है कि ठीक है यार काम चल रहा है ना, चलते रहने दो. कोई भी एक नया स्टेप लाना नहीं चाहता. I'll tell you another thing that I want to share over here, slightly outside the context of lead generation. लेकिन another very big problem with the realtor community or realtors as individuals is there is a very strong belief कि 2 लोग को मिलाने का काम है मेरा. मतलब I'm transacting with realtors in Delhi, I'm transacting with realtors in Nasik, in Mumbai, in Bangalore, right? The way they handle the transaction, मतलब इंट्रोडक्शन के अलावा there is probably negligible amount of presence in the entire transaction. And trust me, unless that doesn't change, unless the internal belief doesn't change कि मेरा काम खाली मिलाना नहीं है, मेरा काम solution देना है. राइट. अगर मैं हूँ मीडिएटर तो मीडिएटर हर तरीके से कि अगर एक जगह देनी है तो वो जगह के लिए इसको क्या चाहिए और इसको क्या नहीं चाहिए. राइट. ओनर को क्या नहीं चाहिए और बायर को क्या चाहिए. अगर ये चीज़ों का लिस्ट मेरे पास है और ये लिस्ट को सही तरीके से अक्यूमुलेट करने के लिए मैंने सारा काम कर लिया है, देन आई हैव डन माय जॉब करेक्टली.
I agree. Another thing with real estate as a business is it's the most unpredictable, it's the most erratic business Yeah. to be in. Yeah. आज 4 ट्रांजैक्शन हो गए, 6 महीने तक एक भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, Yeah. राइट? क्यों? बिकॉज यू हैव नॉट बिल्ट अ पाइपलाइन. Yeah. देयर इज ऑल्सो अनदर चैलेंज. जितने भी लोग मार्केटिंग में है ना, दे डोंट हैव डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, Okay. राइट? सो लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है, लोग फेसबुक मार्केटिंग कैसे करना सिखा देते हैं, डिजाइनिंग करना कैसे सिखा देते हैं, Google. बट इसका कॉन्टेक्स्ट कि इसका रियल एस्टेट में क्या डिफरेंस है, ये नहीं समझा पाते. Okay. बिकॉज दे हैव नॉट डन इट एट लेंथ, Hmm. and because our experience was completely real estate focused, it became very easy for us. Okay. So it was just accidental, it was not intentional. So you're saying कि जो डिजिटल मार्केटिंग होती है वो भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक होनी चाहिए. 100%. तो आपके जो भी डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए रन कर रहा है उसको पहले रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी समझनी पड़ेगी. ऐसा नहीं कि जैसे बाकी इंडस्ट्री चलती है वैसे लीड जनरेशन यहाँ भी हो जाएगी. So let's go to day one. जब मैंने शुरू करा था, day one में I walked into a real estate exhibition and I just went into every stall to ask them, how do you guys generate the lead? Because मुझे पता है एग्जीबिशन में आया तो लीड लेने ही आया है. तो बोले एग्जीबिशंस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. आई अंडरस्टूड. 7-8 डेवलपर से बात की, एक के बाद एक. इवेंचुअली आई टोल्ड, आई थिंक 3 or 4 people where the conversation went to the next level, where I asked them, said, would you like to generate leads digitally? तो बोले हम तो करते हैं. तो मैंने बोला अगर करते हो तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? बिल्कुल ठीक है. ठीक है. इफ यू हैव अ गुड फ्लो ऑफ लीड्स देन यू डोंट नीड टू बी हियर. Yeah. And then the first 2 or 3 set of clients that we got on board, I physically went down to more than 40 projects अच्छा. in that vicinity for those 3 people to understand how real estate works. Okay. तब तक तो मुझे रियल एस्टेट का आर नहीं पता था कि स्क्वायर फीट क्या होता है, साइजिंग क्या होती है, Yep. प्राइसिंग कैसे कोट की जाती है, इज इट बॉक्स प्राइसिंग, इज इट पर स्क्वायर फीट प्राइसिंग, Yep. लिंगो क्या होता है, टू द पॉइंट के कप एंड सॉसर किस ब्रांड के यूज की जाते हैं जब मैं विजिट कर रहा हूँ तब, Yep. राइट? बिकॉज इट टेल्स अ लॉट अबाउट हाउ मच द डेवलपर रिस्पेक्ट्स द कस्टमर, बिल्कुल. हाउ मच ही वांट्स टू इन्वेस्ट ऑन दैट. तो आई वेंट टू एब्सोल्यूट ग्राउंड रियलिटी टू लर्न हाउ रियल एस्टेट इज सपोज टू बी डन, एंड देन आई अप्लाइड माई नॉलेज ऑफ डिजिटल Yep. टू रियल एस्टेट. दैट डोमेन नॉलेज इज वेरी क्रिटिकल. वरना तो क्या है, वैसे तो फेसबुक मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग तो करोड़ों लोग को आती है. क्यों वो करोड़ों लोग के पास लाइनें नहीं लगी हुई है? बिल्कुल ठीक है. बट आप मेरे को ये बताओ, आज भी मैं देखता हूँ कि जैसे हम हाईवेज पे जाते हैं या हम बड़ी रोड्स पे जाते हैं, वहाँ पे आज भी होर्डिंग्स लगे हुए हैं. आज भी जो है आई थिंक डेवलपर स्टिल मोर देन 50% आज भी ट्रेडिशनल वेज ऑफ मार्केटिंग में ही स्पेंड करते हैं. दे आर स्टिल डूइंग न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, दे आर स्टिल डूइंग एग्जीबिशंस, स्टिल डूइंग इवेंट्स. तो ये अभी भी चेंज नहीं हुआ है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए. बाकी किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है. ट्रेडिशनल वेज ऑफ मार्केटिंग अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं. This judgment could be wrong that real estate is still following traditional ways, because real estate is a geography limited business, Okay. right? A lot of other businesses have the ability, like finance has the ability to be Scalable. It doesn't have limitation of geography, Yeah. right? So real estate की limitation geography है. Okay. अब अगर आप जो विसिनिटी में रहते हो, आपने नोटिस किया होगा कि 15 साल से आप वहीं रहते हो, उसी 5 किलोमीटर उसी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रेडियस में यू मूव फ्रॉम ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर. तो ये टिपिकल बायर बिहेवियर है. ओके. एंड एनी मार्केटिंग सिस्टम हैज टू स्पेसिफिकली एड्रेस टू द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर. ओके. तो क्योंकि वो कस्टमर 5 किलोमीटर से बाहर जाएगा नहीं, इसलिए वो होर्डिंग्स जो है वो उन 5 किलोमीटर में ही बम्बार्ड की जाती है. ओके. ठीक है. तो लॉजिकली इट्स अ वेरी रेलेवेंट थिंग फॉर अ डेवलपर टू डू दैट. The point which you mentioned that real estate is still very traditionally driven, that is right. Yeah. Because for a lot of developers, digital has become a sales. In fact, developers के लिए तो क्या बोलूँ, 90% इंडस्ट्रीज के लिए उनको ऐसा लगता है डिजिटल इज अ सेल्स वॉन्ड. अच्छा. कि क्योंकि मेजरेबल है, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर से बात हो सकती है सीधा. बट एक चीज़ और मैं अपनी टीम को काफ़ी समझाने की कोशिश करता हूँ. मैंने ये रियलाइज़ किया है कि क्लाइंट की भी ना 3 या 4 स्टेजेस हो सकती हैं. देयर इज़ अ ड्रीम स्टेज जहाँ पर वो अभी सिर्फ सोचना शुरू कर रहा है कि मुझे घर खरीद लेना चाहिए. देन देयर इज़ अ डिस्कवरी फेज जिसमें वो बाहर निकलता है घर से
या इंटरनेट पे ढूंढना शुरू करता है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं. करेक्ट. देन देर इज अ डील स्टेज जिसमें कि नाउ ही इज एक्टिवली लुकिंग एंड एक्टिवली विलिंग टू क्लोज अ डील. एंड देन देर इज पेमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन. हर किसी को ना वो वाली लीड चाहिए जो बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ डील है, बट वो ढूंढना नामुमकिन है. आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ओके. तो आपने जो बोला स्ट्रक्चरली करेक्ट है. ओके. ओके. बट आई हैव हैड पीपल वेयर वी हैव क्लोज्ड अ डील इन 48 hours. अच्छा. From inquiry to closure, where the guy was not, where it was his first site visit. या या. Right? तो आप जो सारे stages की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि he's come to the last stage and then he's inquired. And I'll tell you the reason why majority of the times a realtor should not worry about the structure which you spoke about is because if you actually understand the pain point of your customer ना, तो ये structure की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ओके. The reason why the structure is required is वो कस्टमर धीरे 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 खुद ग्रेजुएट हो रहे हैं. या या. बट अगर रियल्टर फर्स्ट स्टेज में उसके पेन पॉइंट को समझ लेना, विद इन 15 days वो क्लोज हो जाएगा. वो डे वन, आप जो ड्रीम स्टेज की बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ऑन अ ड्रीम स्टेज एंड अ रियल्टर मीट्स मी एंड ही अंडरस्टैंड्स ये मेरा ड्रीम का कॉज क्या है, या या. एंड आई गेट द कंफर्ट कि यार इसको मैं बता सकता हूँ कि एक्चुअली मुझे चाहिए क्यों और क्या चाहिए. राइट. It will catalyze the entire transaction in an absolutely astronomical timeline. Excellent. And the problem is neither your marketing is focusing on the customer's pain points and neither is your conversations focusing on customer's pain points. Yeah. Marketing में भी मैं बेच रहा हूँ 2 BHK 3 BHK at this price. Conversation में भी बेच रहा हूँ, सर आपको 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए. भाई घर तो चाहिए लेकिन क्यों चाहिए? मेरी जिंदगी की दर्द क्या है? सो जैसे मैं देख रहा था लिंक्डइन के ऊपर, यू आर अ सर्टिफाइड फेसबुक पार्टनर एंड यू आर अ सर्टिफाइड गूगल पार्टनर. तो वो सब जो है वो आप कैसे हेल्प करते हैं आपके क्लाइंट्स को, एंड हाउ डू यू अचीव दैट स्टेटस एंड उसमें क्या फ़ायदा मिलता है? सो आई थिंक बीइंग अ सर्टिफाइड पार्टनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बोलने के लिए फेसबुक और गूगल तो 1000 लोग करते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल समबडी वर्किंग इन माई कंपनी हु इज रनिंग दैट, उसको भी आता है. टुमारो ही कैन ऑल्सो स्टेप आउट एंड स्टार्ट गोइंग टू अ रियल एस्टेट बिजनेस एंड से मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ. बट गेटिंग दैट सर्टिफाइड बैच इज अ लॉट ऑफ वर्क. ओके. राइट. सो आई थिंक एंड सर्टिफिकेशन में ऐसा है कि you automatically get groomed to learn things that a lot of people have probably ignored. अच्छा, तो वो कंपनीज खुद सिखाती हैं? नहीं, सो कंपनी सिखाती नहीं है, वो टेस्ट करती है. सीखना तो तुम्हें खुद ही पड़ता है. अच्छा. तो सर्टिफिकेशन तुम्हें तब मिलता है जब when you pass those tests. Okay. Right. I was also empaneled as a trainer with Facebook. So I have conducted more than I think close to 14 training programs inside the Facebook office in Mumbai. Wow. At BKC. So I think basically the key is if they understand that your knowledge and your application about the platform is relevant for the industry you're working for, you get the certification, you get the partnership badge, you have to pass those tests. And from a client point of view, I think it helps because they're reducing the risk of working with somebody who doesn't understand the game. Okay. इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास सर्टिफिकेट और पार्टनर है बैच वो सारे सही है. But I think definitely partnership batch makes a huge amount of difference. But मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है जब आप ऑनलाइन पैसा स्पेंड करते हो तो एक डेवलपर भी पैसा स्पेंड कर रहा है जिसकी पॉकेट्स बहुत डीप हैं. ओके. ठीक है. प्रॉपटेक कंपनीज भी हैं लाइक स्क्वायर यार्ड, लाइक एनारॉक, इन्वेस्टर क्लिनिक, जिनकी पॉकेट्स बहुत डीप हैं, जिनके मार्केटिंग बजट्स बहुत ज़्यादा हैं. वो भी सेम फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं, गूगल एड्स रन कर रहे हैं. तो वहाँ पर एक छोटा रियल्टर का क्या चांस रह जाता है? हाउ कैन दे कम्पीट विद द डीप पॉकेट्स ऑफ 99 एकर्स, स्क्वायर यार्ड्स एंड मे बी DLF? एक छोटा एजेंट वहाँ पे कैसे आज के टाइम पे लीड जनरेट कर सकता है? So it's the most typical question we get in our training programs. Okay. We must have had more than 15 to 18,000 realtors who attended our basic program. Really? And this is the most prominent question. ठीक है.
This actually throws me back to a situation, and sometimes things in life kind of work out very interestingly. Yeah. So when I was in my college, I did BMS, and my because एकदम मार्केटिंग का जो कीड़ा है वो ऊपर वाले ने ऐसे मतलब जब पैदा हुआ था तब शायद डाल दिया होगा कि बचपन में डाल दिया तभी था। डाल दिया होगा कि भाई तू मार्केटिंग करेगा। तो तब से जो चीज़ है, so that time I did a project with Yashraj Films, Wow. and I got a chance to learn from the CMO of Yashraj, and he taught me a very interesting thing about David versus Goliath. Yeah. And what you just spoke is a David versus Goliath story. अच्छा, ठीक है? okay. So Goliath is basically the developers and David is the realtor. छोटा Right? small business. Small business. Now a lot of times people forget the fact that Goliath का प्रॉब्लम ये है कि उसकी साइज जो है ना उसको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती है। Yeah. सो यू आर लुकिंग ओनली एट द स्ट्रेंथ कि उसका मसल इतना ज़्यादा है। हाँ मसल है, लेकिन वो मसल मूव नहीं होता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको फॉलो करने पड़ते हैं। Yeah. उसकी लिमिटेशंस है। ये चीज़ एक रियल्टर के केस में नहीं है। Okay. राइट, इट्स इज बिगेस्ट स्ट्रेंथ। अच्छा। सेकंड, जो मैंने आपको बताया ना एसी ऑफिस वर्जन, ये उसकी सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। Yeah. और जो बॉटम लाइन वर्जन है, जो ब्रोकर वर्जन है, ये ऑन ग्राउंड वर्जन है। ये उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। ही नोज एग्जैक्टली द पल्स। अब उसको क्या नहीं पता है, हाउ टू डू डिजिटल। Yeah. तो इसके पास पैसा है डिजिटल एजेंसीज को हायर करने का, बट ये ज्ञान अगर इसको सीधा सिखा दिया जाए, ये समझ इसको दे दी जाए, Yeah. तो ही विल बी एबल टू डू 100 टाइम्स बेटर देन हिम। Okay. एंड उसके दो और बड़े रीजंस हैं। एक, द एंटायर मोनेटाइजेशन मॉडल ऑफ अ बिल्डर is he wants to sell his building. Yeah. But the biggest kick for a broker is he wants to earn brokerage out of the transaction. Yeah. अब इसके लिए वो हर लीड को जितना प्यार से डील करता है ना, वो डेवलपर कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो टीम है उसका इनकम सेल्स से नहीं आता है। उनकी तो फिक्स सैलरी है। एग्री। राइट। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसके ऊपर कोई टाइम नहीं स्पेंड करता है कि यार मार्केटिंग में उसके पास मसल है, लेकिन बाकी कहाँ पे वो वीक है। Yeah. मतलब आई एम टेलिंग यू, वी हैव डन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स वेयर 40% ऑफ द लीड्स हैव नेवर बीन कॉल्ड। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, वॉल्यूम इतना ज़्यादा, बैकग्राउंड में टीम के पास उतना बैंडविड्थ नहीं है। अगर वो लीड्स क्लोज ना हो तो किसी का सैलरी पे चेक कट नहीं होता है। उनके पास उतनी पेशेंस भी नहीं है। करेक्ट। मोर देन दैट, क्योंकि वो उनका पैसा कट नहीं होने वाला ना, या तो उनको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज बेसिकली द रीजन वाई अ ब्रोकर कैन एक्चुअली डू अ लॉट बेटर देन अ डेवलपर। तो आपके पास ऐसी कौन सी सीक्रेट सॉस है? कुछ हमें भी थोड़ा सा उस सॉस का फ्लेवर दो। व्हाट डू यू टीच इन योर कोर्सेज? थोड़ा सा कोई सीक्रेट सॉस या कोई एक्शनेबल स्टेप जो आज कोई जाके ट्राई कर सके। So I think secret sauce is basically in the it's a combination. Obviously, like sauce is a combination of ingredients, right? Yeah. So there are multiple ingredients. One ingredient is understanding your customers' pain points, which I've been stressing about again and again. Yeah. The second ingredient is understanding which platform is most relevant for you to translate those pain points into reaching out to those customers. अच्छा, ऐसा भी होता है। So बहुत लोग मुझे बोलते हैं, अरे you're a Facebook expert, right? I said नहीं, I'm not a Facebook expert. I'm a marketing expert who's chosen Facebook to be the platform. Oh, अच्छा। Right? Why? Because so I have built a tool which is on the developer app of Facebook. So we know the algorithm in and out. Okay. When we did that, we understood that the level at which Facebook understands your demographics, Meta as a platform, is probably not even close to any other competitor. Like even the giants like Google or anybody else, for them you're just a binary code. Yeah. But for Facebook, for Meta, you're not a binary code. Oh. You're an absolute profile. अच्छा। And everything is attached to you. बट लोग बोलते हैं कि गूगल को हमारे बारे में हमारे से ज़्यादा पता होता है। Yes, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आप कौन हो। ओके। Facebook को पता है आप कौन हो। ओह अच्छा। ये फंडामेंटल डिफरेंस है। ओके। और उसका मैं एक लॉजिकल आपको डिफरेंस समझाता हूँ। सो if you open your phone app and you go to Facebook or Instagram and you see any ad, there are 3 dots on the right side on the top. Yeah. Right? उस पर क्लिक करोगे ना तो उस पर एक ऑप्शन आता है, why am I seeing this ad? Yes, I've seen. Right? You click on that. There are 3 more steps that I show as a part of my program. You will find out Facebook knows more than close to 10,000 plus different attributes about you. Wow.
in terms of your interests that you also don't know about, because Facebook tracks all of your activities on the platform and off the platform. ओह अच्छा. तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा GPS का डेटा ऑलरेडी शेयर्ड है. Facebook knows कि आई एम इन गुड़गांव और आई एम इन दिल्ली. It will automatically redo the feed to show me relevant content of the geography I'm in. Wow. But if I go to Google and I open Chrome, मेरे Chrome पे वही दिखेगा मुझे जो मुझे बॉम्बे में दिखता था. या बिल्कुल ऐसे ही होता है. And second thing, Google as a platform is a search based platform. मतलब कि जब तक मेरी नीड सर्च करने की ना आए तब तक मैं वहां जाऊंगा ही नहीं. बिल्कुल ठीक है. Facebook and Instagram is a engagement based platform. तो मेरी नीड है या नहीं है, मेरा कंटेंट का प्रेफरेंस क्या है, उसके हिसाब से मेटा डिसाइड्स व्हाट शुड आई सी. वाओ. एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज योर Instagram and my Instagram will be totally different from each other 100%. because your content preferences are very different, my content preferences are very different. Yeah. Which is what makes us extremely sticky. अब टाइम्स ऑफ इंडिया सालों तक चल रहा है, एक ही न्यूज सब पढ़ रहे हैं. राइट. The reason why people have stopped reading newspapers is it's not possible to make newspapers personalized. Customized. Which is why InShots became a phenomenally bigger hit. Yeah. Because it added the layer of personalization on top of news. And this one thing is what real estate business lack the most. Personalization. क्योंकि एक एजेंट को तो ऐसा लगता है कि DLF का ब्रोशर है, DLF का प्रोजेक्ट है और DLF की सेल्स टीम ही उसको हैंडल करेगी, तो उसको ऐसा लगता है मेरा काम तो सिर्फ क्लाइंट को वहां तक ले जाने का है. बट वहां तक लेके आने के लिए पर्सनलाइजेशन तो तुम्हारा है ना. बात तो तुम कर रहे हो. Yep. कस्टमर का फर्स्ट टच पॉइंट of interaction is you. Yep, agree. Unless you are not personalized, for him you are just another broker. Which is why a lot of people disguise as developers. Yeah. कि sir I'm calling you as a developer. हाँ, वो भी करते हैं. Right. The reason why you have to do all these things is only because of the fact that you do not have the ability to personalize. Yeah. So you are trying to fall on the back of the developer to drive your business. बिल्कुल. And the reason why people respect realtors a lot more in Dubai is because realtors decide क्या communicate करेंगे. तो डेवलपर को हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि भाई तू मेरा माल बेच दे. यहाँ पे उल्टा है. आई थिंक वहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट्स भी अपना ब्रांड बनाते हैं. एब्सोल्युटली. यहाँ पे एजेंट्स अपना ब्रांड बनाने के बारे में नहीं सोचते एंड लाइक यू सेड वो डेवलपर के ब्रांड के ऊपर ही राइड करते रहते हैं. अगर ये सवाल पूछा जाए लोगों से कि क्यों, व्हाई डिड यू बिकम अ रियल एस्टेट एजेंट, राइट, तो एक होता है कि बहुत ही पेसिमिस्टिक व्यू है, अगर जिसको कुछ नहीं आता वो रियल एस्टेट एजेंट बन जाता है. वो बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत हॉरिबल है. मतलब आई डोंट बाय दैट. बट आई थिंक द मेजर रीजन व्हाई लॉट ऑफ पीपल बिकम रियल एस्टेट एजेंट्स इज बिकॉज दे गेट ग्रीडी विद द साइज ऑफ ट्रांजैक्शन. कि 4 करोड़ की ट्रांजैक्शन है, 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन है, आई विल बी एबल टू मेक 2%, 3%, 4%. उनको लगता है ईजी मनी है. It's not easy money, it's big money. Yeah, big money. Right? When your driver is big money, your focus can never be value to a customer. Yeah. Because you're focusing on just your money. That is the fundamental reason why a lot of people in real estate have never seen success. क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ एक चीज़ पे चल रहा है, मैं मेरा 2 टका कैसे बनाऊँ. तो जैसे आपने फेसबुक की बात करी, जैसे आपने गूगल की बात करी, अब एक नया ट्रेंड आ गया है विच इज़ AI. एंड ऑल्सो अभी जो सबसे ज़रूरी चल रहा है ChatGPT. मैं सोशल मीडिया पे रोज़ मैसेजेस आ रहे हैं, इफ़ यू आर अ रियल्टर एंड यू आर नॉट यूजिंग ChatGPT देन यू आर लूजिंग मनी. अभी क्या लग रहा है आपको AI और ChatGPT अभी कितना बड़ा रोल प्ले करेगा इन मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन? क्योंकि सुनने में तो ये भी आता है कि AI आएगा और वो मार्केटिंग एजेंसीज और मार्केटिंग के जो स्टाफ है उनको भी रिप्लेस कर देगा. ऐसे टूल्स डेवलप हो रहे हैं. आपका क्या व्यू है उस बारे में? So it's true. Let's be straight about it. अच्छा. People are going to lose jobs. Okay. Right? ये जितने भी लोग मतलब वो यहाँ से वहाँ से आ रहे बातें करते हैं ना कि ऐसा नहीं होगा वैसा. The truth is people are going to lose jobs. Okay. Right? But there's also very relevant saying which says it's not the AI who will replace you. It's the people who know how to use AI who will replace you. Makes sense. So ये जो हाफ इंफॉर्मेशन है ना, AI will replace you, ये हाफ इंफॉर्मेशन है. Yeah. It's the people who know how to use AI will replace you.
मतलब अगर आप अपना स्किल सेट इंक्रीज नहीं करोगे तो कोई दूसरा आएगा, जिसको वो आता है, इसलिए वो आपको रिप्लेस कर वो देगा। आपको रिप्लेस कर देगा। करेक्ट। ओ अच्छा, नाइस। सो इफ यू आर अ मार्केटर एंड देन यू आल्सो नो एआई, देन योर चांसेस आर दैट यू विल रिप्लेस जैसे समवन। MBA हैड बिकम अ डिफॉल्ट इंग्रेडिएंट, या AI is a default ingredient. So ChatGPT is nothing but a tool. I mean, या it's not a threat. ओके But if you don't learn it, it will become a threat because तुम पीछे रह जाओगे, बहुत सारे लोग उसको सीख के आगे चले जाएंगे. ओके And generative AI is phenomenally powerful because uh, look at a kid. एक बार एक kid अगर 2 फुट की हाइट से गिर गया, right? What is generative AI? Their ability to understand that 2 फीट मेरे लिए रिस्की है. या नेक्स्ट टाइम वो कभी उस एज पे छोड़ देना आप उसको, वो कभी गिरेगा ही नहीं. कभी नहीं गिरेगा। एग्री। Right? Why does that happen? Because our human brain has the ability to learn Yeah. very fast. The same thing is basically what is done in AI. It's called a generative AI, where the AI has the ability to learn from itself. ओके। Right? So the reason why it's said that ChatGPT अगर आप नहीं जानते हो, it will be a problem because what you can do is you can keep training your ChatGPT bot to become literally your parallel engine ओ who knows more than what you know. But input तो आपसे ही आएगा ना सर. बट मार्केटिंग में भी लोग कह रहे हैं कि अब वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। कर रहा है. जैसे मैं पढ़ रहा था कि जब से चैट जीपीटी आया है तब से गूगल के सर्चेज एनुअली काफ़ी गिर गए हैं। आई थिंक 8-9% उनके सर्च रिजल्ट्स डाउन हो गए हैं। So the biggest threat to Google is ChatGPT. ओह अच्छा। It's not Facebook. बट कल को ऐसा भी होगा कि चैट जीपीटी पे लीड जनरेशन भी हो रही होगी। नहीं. So ChatGPT is basically just a tool, right? For you to crunch information. ओके। Action तो फिर भी आपको ही लेनी है ना. या That you cannot delete. बट अभी क्या है, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर भी आप देखोगे अब एआई आ गया है, उसमें भी अगर आप जाते हो एंड यू सर्च के व्हाट आर द बेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, तो तो मिल इट जाता गिव्स अ वेरी गुड आंसर Correct. और आपको लेटेस्ट प्रोजेक्ट विद लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वो दे देता See, I'll tell you one thing, right? Real estate है। is not a business of exchange of information. या It's a business of exchange of experience. ओके। Information is available for free. या सबके And पास if you're a mediator for information, your business is dead. ओके। Straightforward. तो जब तक आप experiences का exchange नहीं शुरू करोगे, take it from me, your business is anyways gone. एक ट्रेंड में अभी और देख रहा हूँ विच इज़ द शॉर्ट्स एंड रील्स। अभी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो से अब जनता भी जो है और मार्केटिंग एजेंसीज भी जो है वो सब अब शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट कंटेंट फॉर्मेट पे आ गए हैं। उसका क्या रोल है? अभी इंडिया में टिकटॉक तो बैन हो गया, तो उसका क्या रोल रहेगा मार्केटिंग में नेक्स्ट 2-3 years? Actually है ना ये it's called as an inversely proportional problem where if you will see the size of content has reduced but the consumption of content has drastically increased. Yes. Shorter content doesn't necessarily mean consumption is going to reduce. Shorter content means relevant content will only survive. बट एक मार्केटर अपना पूरा मैसेज कैसे दे सकता है 30 सेकंड्स के अंदर, 20 सेकंड्स के अंदर? लोगों का पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है, लोगों का अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा नहीं है। एक्चुअली क्या है मालूम है, इट्स जस्ट द मोड हैज चेंज्ड. ये है ना, टू बी ऑनेस्ट, जस्ट गो बैक टू योर स्कूल, राइट? पूरी हिस्ट्री एक ही टेक्स्ट बुक में सिखाई थी, राइट? लेकिन उसमें चैप्टर्स थे, राइट? चैप्टर 1 2 3 4 5. ब्रेक किया था. रील्स क्या है? इट्स जस्ट ब्रेक्स. ओह अच्छा। द मोड ऑफ लर्निंग इज स्टिल द सेम. ओके द मीडियम हैज चेंज्ड. ओके। तो आपको तो अपना ह्यूमन ब्रेन जो है वो आज भी पैकेट में ही कंज्यूम कर सकता है. ओके। विच इज वाई सैशेज वर्क वेरी वेल देन द बॉटल्स. ₹1 का सैशे बहुत सही चलने लगा मार्केट में बिकॉज फॉर एनीबॉडी tasters are always going to be more easier to consume than the whole thing. Agree. And that's exactly the same thing in content. So for a marketer, they have to understand you have to be able to deliver a lot of small tasters. Okay. If you want to be successful. बड़े पैकेज को छोटे छोटे में आपको डिलीवर करना है। बट मैंने देखा है आप सोशल मीडिया पे खुद तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी आपके प्रोग्राम्स के बारे में, आपके बारे में, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, कुछ मिला ही नहीं मेरे को। ऐसा क्यों है? आप क्यों सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो? So यार, one thing is lot of people get on social media because उनको fans और followers चाहिए. और दूसरा है कि बहुत मतलब I would say, I wouldn't use the word shy, but I would say
I am more interested in working with people, Okay. right? So my and there are different modes, right? So people use social media organically. People use social media through ads like me, and there are people who basically use YouTube, ये वो सब अलग 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 channels है. I feel very comfortable with ads because then it is based on my timeline, right? Agree. Followers के लिए नहीं करता मैं काम. हाँ, काम होता है लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. बिल्कुल ठीक है. तो बेसिकली फॉर अस इट्स जस्ट अबाउट इम्पैक्ट. Yeah. And that's why you wouldn't have found anything. Though, yeah, I agree that in today's day and age, I can't give this. It's an excuse, so I take it. And I do have my team working on improvising this part of Yeah. my background. But I think I am more driven about bringing transformation to people's lives. Excellent. Which is the reason why वहाँ से यहाँ तक आ गया मैं. But अगर आप इतना ही टाइम मुझे बोलो कि यार निमित सोशल मीडिया रील पे डाल दे, मैं नहीं डाल पाऊंगा. नहीं, बिल्कुल ठीक है. Namit ji, thank you very much for coming. I know this is your officially first podcast or first, I would say, interaction on internet. And thank you very much. आज बहुत मज़ा आया मुझे. And I hope that we do business together in the future also. Thank you for inviting. Lovely. I really enjoyed this conversation as well. Same here, sir. Thank Thank you. you. Thank you. Yeah.